मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स से बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। Reaction used for preparation of ethers is Williamson's synthesis. The test used to distinguish alcohols from one another is known as Lucas test. When tertiary alcohol is treated with anhydrous zinc chloride and HCl, it gives turbidity immediately, whereas secondary alcohol gives after 5 minutes and primary alcohol gives turbidity only upon heating. Which of the following has highest boiling point? So butane 1-ol will have highest boiling point because it is the biggest molecule of the four, and van der Waals force of attraction is more in a bigger molecule. Commercial alcohol is made unfit for drinking by adding methyl alcohol. Ethanol, when treated with sulfuric acid at 413 Kelvin, will form ethoxyethane. At 413 ether is formed, at 443 alkene is formed, and at 383 Kelvin ethyl hydrogen sulfate is formed. So option B is the correct answer. Then ethanol at 443 Kelvin will react with sulfuric acid to give ethene. Williamson synthesis is used to prepare ether. In the reaction, anisole plus HI at 373 Kelvin, H will combine with phenoxide ion to form phenol, and I will combine with CH3 to form methyl iodide. So option B is the correct answer. I being bigger goes to the smaller group. Which is the weakest acid in the following? So tertiary alcohol will be the weakest acid because of electron releasing influence of 3 methyl groups. The electron density of oxygen is satisfied, so the need to take electrons from OH bond decreases, so acid is weak. In the following, which is the strongest acid? So this with primary alcohol, methanol, with smallest alkyl group, smallest electron releasing influence will be the strongest acid. As the alkyl group becomes bulkier or greater in number, the acidity decreases. Molecular formula of ether will be CnH2n plus 2O. Which option C is the correct answer? Which of the following is most acidic? So aromatic alcohol phenol is acidic, but when an electron withdrawing group is present on phenol, the acidity further increases. So option D is the correct answer. Which has the highest value of pKa? Highest value of pKa means which is the weakest acid. So all other are aromatic alcohols, so they are more acidic than ethanol. So option B is the weakest acid and has highest pKa value. Which of the following has highest boiling point? So once again, butane 1-ol will have highest boiling point क्योंकि ये सबसे बल्कि है, इसमें van der Waals force of attraction सबसे ज़्यादा होंगे. Which of the following is strongest acid? तो ऑर्थो नाइट्रो मेटा नाइट्रोफिनोल में नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन इन तीनों में से पैरा पोजीशन पे इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन सी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन डाईएथाइल ईथर. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन को कहीं से भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए होता है जो ड्राई हो, जिसमें हाइड्रोजन ना हो. तो डाईएथाइल ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होंगे. Williamson's synthesis is an example of nucleophilic substitution.
reaction. Intermolecular hydrogen bonding will be strongest in methanol. Which of the following statement is incorrect? तो ये फिनोल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं करता है. फिनोल इज़ वीक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिबरेट करते हैं, फिनोल नहीं करता है. तो ऑप्शन ए जो है इट इज़ इनकरेक्ट. डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू गिव ईथर्स इज कैटलाइज्ड बाय concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin. 443 पे एल्कीन बनता है और 383 पे हाइड्रोजन सल्फेट बनता है. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो कुछ इम्पॉर्टेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे. पैरानाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन फिनोल. वाई? क्योंकि पैरानाइट्रोफिनोल में जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो उसका -I और -R इफ़ेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन्फ्लुएंस होता है और रेजोनेंस में भी वो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींच लेता. नाइट्रो वाला जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींच लेगा और इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगी. तो ये ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाता है फिनोल्स के कंपैरेटिवली. सो पैरानाइट्रोफिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन फिनोल. गिव रीजंस फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन 1-ol दैन ब्यूटेन. इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एल्कोहल्स एसोसिएटेड होते हैं और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उनको एक दूसरे से ब्रेक करके वेपर फेज में लाने के लिए. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है. जबकि ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें वीक वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. पैराक्रिसोल इज लेस एसिडिक दैन पैरानाइट्रोफिनोल. तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो पैराक्रिसोल में OH के पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन्फ्लुएंस है, एल्काइल ग्रुप है. ये इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को इधर को बढ़ाता है और एसिडिक कैरेक्टर को वीक करता है. जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ और OH के पैरा पोजिशन में लगा है. ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है जिससे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से खींचता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये कम होगा. Explain why phenols do not undergo substitution of OH group while alcohols do so. तो ये this is because of resonance की वजह से यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो इसकी वजह से बॉन्ड क्लीवेज मुश्किल होती है तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है. जबकि अल्कोहल्स में कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाता है और OH की जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन टॉलुइन. फिनोल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है. जबकि टॉलुइन में वीक वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है. Phenols are acidic in nature. Explain. Responsible है रेजोनेंस. फिनोल और फिनोक्साइड दोनों में ही रेजोनेंस होती है बट रेजोनेंस की वजह से फिनोक्साइड आयन जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. इसमें जो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं तो चार्ज डिफ्रेंशिएशन भी नहीं है और नेगेटिव चार्ज रिंग की तरफ डिस्पर्स भी हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. तो इसलिए बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है. इसके कंपैरेटिवली एल्कोक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस शो नहीं करता है, इतना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए एल्कोहल्स लेस एसिडिक होते हैं और फिनोल्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथर्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स. दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट नेचर ऑफ ईथोल. ईथर्स में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, एल्काइल ग्रुप का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है तो इसलिए ये इनर्ट होते हैं. और एक अच्छा सॉल्वेंट जो है वो इनर्ट नेचर अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट होगा, इसलिए ईथर्स को हम एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर पाते हैं.
देन इथेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसोसिएटेड होता है मॉलिक्यूल और ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जबकि मिथॉक्सी में वीक डाइपोल इंट्रैक्शंस होते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। देन नेक्स्ट, फिनोल हैज़ स्मॉलर डाइपोल मोमेंट दैन मिथेनॉल। तो इसका रीज़न है कि जो फिनोल्स हैं उसमें जो OH ग्रुप होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है और इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम पोलर होता है। तो अगर ये कम पोलर है तो डाइपोल मोमेंट कम होगी। जबकि इन केस ऑफ एल्कोहल्स जो मिथाइल ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट करके ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ को ज़्यादा भेजता है, तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है और इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है। तो फिनोल इज़ लेस पोलर एंड मिथेनॉल इज़ मोर पोलर इन नेचर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जिनमें से कुछ आपको आएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो एल्कीन्स को जब BH3 से रिएक्ट करवाते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह H और एक जगह BH2 ऐड होगी। तो एज अ रिज़ल्ट ये एल्काइल बोरेन कम्प्लेक्स बनेगा। ये जब तक इसमें हाइड्रोजन्स हैं ये और एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करके इवेंचुअली ट्राई एल्काइल बोरॉन बनाता है, जिसको जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल और बोरिक एसिड बनता है। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इज ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। तो इसमें एल्कीन्स में वाटर की प्रेजेंस में हम मर्क्यूरिक एसिटेट ऐड करते हैं, सॉल्वेंट यूज्ड इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, और फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीमर्कुरेशन होती है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह OH और दूसरी जगह H2OAC लग जाएगा। जब इसकी रिडक्शन कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अल्कलाइन मीडियम में, तब ये H2OAC निकल जाता है और उसकी जगह H लग जाता है और अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इज डोज रिएक्शन। तो ये फिनोल बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन को 10% NaOH के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर कॉपर सॉल्ट एज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। NaCl निकल जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जिसकी एसिडिफिकेशन करने पर फिनोल बनता है। रिएक्शन इज कॉल्ड डोज रिएक्शन। Another process, Rashid's process, is also important name reaction. इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड के वेपर्स को बेंजीन के ऊपर in the presence of air and cuprous chloride and ferric chloride as catalyst at 500 Kelvin जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, जिसके थ्रू स्टीम पास करते हैं in presence of silica at 800 Kelvin to form phenol. The process is called Rashid's process. Friedel-Crafts alkylation, phenols की को में अल्काइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगाने के लिए एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अल्काइल हेलाइड से हीट करते हैं, तो अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है और HCl निकल जाता है। इस रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट इज एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में फिनोल को ऑक्सीडाइज करते हैं यूजिंग पोटेशियम पर सल्फेट इन अल्कलाइन मीडियम। तो OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैच होकर मिक्सचर ऑफ कैटेकोल और क्विनोल बनाता है और रिएक्शन को कहते हैं एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह फ्राइज रीअरेंजमेंट एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें फिनाइल एसीटेट को एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो ये ग्रुप जो है ये रीअरेंज होके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है और इस तरह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है। द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट। इन कोल्ब्स रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को 400 केल्विन और 4 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब पास करते हैं तो इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट हो जाती है और फिर एसिडिफिकेशन पे वो सैलिसिलिक एसिड बनाती है। रिएक्शन को कोल्ब्स रिएक्शन कहा जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट
नेम रिएक्शन इज रीमर-टायमैन रिएक्शन, जिसमें हम फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ इन aqueous NaOH presence and 340 केल्विन एंड इन सेकेंड स्टेप एसिडिफिकेशन करके सैलिसिलैल्डिहाइड बनाते हैं। रिएक्शन को रीमर-टायमैन रिएक्शन कहा जाता है। कपलिंग रिएक्शन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूर लर्न करके जाना है आपने। इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आइस कोल्ड कंडीशंस में एट अ pH ऑफ 9 to 10 फिनोल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इसका H और इसका HCl बना के निकल जाएगा और ये पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगा, जो ऑरेंज कलर का डाई होता है। तो विलियमसन्स सिंथेसिस, इस रिएक्शन में ईथर्स को बनाने के लिए एल्कोक्साइड्स को एल्काइल हेलाइड से रिएक्ट करवाया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ 330 केल्विन, तो अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाए जा सकते हैं। स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन में जब फिनोल को बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH रिएक्ट कराया जाता है, तो बेंजोइल ग्रुप अटैच हो जाता है, बेंजोइलेशन हो जाती है, फिनाइल बेंजोएट बनता है और रिएक्शन को कहा जाता है स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो आपने लर्न करने हैं। एक और तरह के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो हैं कन्वर्जन रिएक्शन। आप एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो ये हम कर लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इथेनॉल, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथॉक्सी ईथेन। तो इथेनॉल को इथॉक्सी ईथेन में कन्वर्ट करने के लिए हम 413 केल्विन पे सल्फ्यूरिक एसिड को एज कैटलिस्ट ले सकते हैं और इथॉक्सी ईथेन बन जाएगा। इसी तरह हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेनोन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट किया जा सकता है। पहले हम क्या करेंगे, इथेनॉल की डिहाइड्रोजनेशन करा देंगे, इसको कॉपर के साथ 573 केल्विन पे जब हीट करेंगे तो ये H और ये H निकल जाएगा और CH3CHO बन जाएगा। अब इस CH3CHO में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, मिथाइल ग्रुप इधर आएगा और MgI इधर आएगा, और फिर जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये CH3CHOH CH3 बन जाएगा। ये इसको जब फिर से डिहाइड्रोजनेशन करेंगे यूजिंग कॉपर एट 573 केल्विन तो एसीटोन या प्रोपेनोन बन जाएगा। तो वी कैन कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेनोन। देन नेक्स्ट इज प्रोपेन, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन 2-ol टू आइडोफॉर्म। तो ये जब भी मिथाइल जो है अल्फा मिथाइल हाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है तो इसको हम NaOH और आयोडीन के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये मिथाइल पोर्शन जो है अल्फा पोजीशन का, ये आयोडीन सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्ट करके ट्राई आयोडो कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करके आयोडो फॉर्म बना लेता है। तो इस तरह से मिथाइल अल्फा मिथाइल एल्कोहल्स को हम आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कन्वर्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो टाइप है जो आता है एग्जाम में, 2 आपको कंपाउंड दिए होंगे और वो बोलेंगे कोई ऐसा टेस्ट बताओ जिससे हम उनके बीच में पहचान कर सकें। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो अगर प्रोपेन 2-ol और 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol है तो इनका हम स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये है प्रोपेन 2-ol, ये सेकेंडरी जो अल्कोहल है, और ये है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ol, ये टर्शरी अल्कोहल है। तो ल्यूकास टेस्ट से हम इनके बीच में पहचान कर सकते हैं। अगर हमने इसको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इस टर्शरी अल्कोहल में टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाएगी, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में आफ्टर 5 मिनट्स आएगी। तो इस तरीके से हम इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1-phenyl ethanol and 2-phenyl ethanol। तो 1-phenyl, ये 1 कार्बन है OH के साथ बाद वाला, इसी को फिनाइल लगा हुआ है, तो इसमें आपके पास मिथाइल अल्फा पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। दैट मीन्स जब NaOH और आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, क्लोरोफॉर्म NaOH और आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो ये आयोडोफॉर्म बनाएगी येलो कलर के। तो
ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, जबकि ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगी, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. देन इथेनॉल वंस अगेन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि मीथेनॉल नहीं देगा, तो इस टेस्ट से हम मीथेनॉल और इथेनॉल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए. इस चैप्टर का आप बड़े अच्छे से रिविजन कर सकते हैं. दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.